تھے عشقی سرمجا نمالد زندگی بوجین ہیشگا گم جو حال حال دے زندگی بوجین بجٹی تھرین تجو بغیرن دنیا ترما مبے بس تھرے بس شال شال دے زندگی بوجین. تو دکھی صاحب تو ایک ایسی شخصیت تھی جس کے بارے میں کیا کہوں, حلقے ارباب ذوق یتیم ہو گئی ہے. جلاتے بھی خود اور بعد میں امداد دیتے ہیں. تیری ہمت ہے اے صاحب تمہیں ہم داد دیتے ہیں, تیری ہمت ہے اے صاحب تمہیں ہم داد دیتے ہیں. ہمارے حکمرانوں کی یہی تو ایک کرامت ہے, صنعت ایوارڈ سب کچھ زندگی کے بعد دیتے ہیں. جب ماں چلی گئی تو میں نے یہ سوچا کہ شاید میری دنیا اجڑ گئی, لیکن مجھے ماں سے زیادہ پیار دینے والی مائیں مل گئی, ماں سے زیادہ پیار دینے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں IMN, پروگرام ہے ٹاکرا, اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. بہت بڑی شخصیت ہے میرے لیے. گلگت بلتستان کے لوگ, نوجوان سب ان کو ایک زبردست قسم کے ڈرامہ نگار کے طور پہ بھی جانتے ہیں, اسکرپٹ رائٹر کے طور پہ بھی جانتے ہیں, اسٹیج کے فنکار کے طور پہ بھی جانتے ہیں, ایک اچھے شاعر کی طرف کے طور پہ بھی جانتے ہیں. اردو اور شناخت دونوں زبانوں کے ایک اچھے گلوکار بھی ہیں, مرث خواں بھی ہیں, نعت خواں بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ وہ معلم ہیں اور 60 سال کی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں استاد محترم محمد نظیم دیا. سر ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, IBX نیٹ ورک کا, تمام سامعین کا, اور سب کو میری طرف سے السلام علیکم. سر یہ ساری چیزیں, آپ شاعری بھی, گلوکاری بھی, ایک اچھے معلم بھی رہے, نعت خواں بھی رہے, مرث خواں بھی رہے. ریڈیو پاکستان پہ میرے خیال میں تقریباً 27 سال آپ نے نیوز ریڈر, اسکرپٹ رائٹر, ڈرامہ نگار, وہ سارے شعبوں میں آپ نے کام کیا. تقریباً زندگی کا آدھا حصہ ریڈیو پاکستان, اسٹیج پہ بھی آپ نے بڑے زبردست طریقے سے لوگوں کو بس جو کام سامنے آیا کرنے کی کوشش کی. باقی سراہنا, اس کی تعریف کرنا یا اس پہ نکتہ چینی کرنا, یہ دیکھنے والے سامعین اور قارئین کا کام ہے. بحیثیت انسان میں نے یہ کوشش کی کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے مخلوق خدا کے دل میں تھوڑی سی بھی ناراضگی پیدا ہو. میں نے مخلوق خدا اور ان انسانوں کو جو ہماری بستی میں رہتے ہیں, ان کو ہنسانے کے لیے آپ خود بہت, مطلب مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ میں آپ کے ساتھ 30 سال کا ایک تعلق ہے. 30 سال بہت مشکل حالات ہوئے, لیکن سٹیج پہ آتے تھے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کبھی ظاہر ہونے نہیں دیا کہ آپ اندر سے کتنے دکھی ہیں. یہی انسان کو لمحات ہوتے رہے, یہی کوشش رہتی ہے. سر لیکن آغاز جو ہے, یہ جو حالیہ دنوں میرے خیال میں کہیں کسی پروگرام میں آپ نے کوئی شنا میں کہیں کوئی وہ کیا تھا, وہ بہت وائرل ہو گیا. ذرا مطلب اسی طرح گنگنائیں گے یہاں پہ بھی. آغاز اسی سے کروں؟ ہاں بہتر ہوگا. تو وہ چھوٹی بہر میں نے کوشش کی تھی, جس کو میڈیا میں سراہا گیا. آپ نے بھی اس کو اپلوڈ کیا تھا میرے خیال میں. بہت زیادہ اس کو تھوڑا سا میں جہاں تک مجھے یاد ہے تھوڑا سا گنگنائیں. کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں شنا الفاظ کو زیادہ استعمال کروں. جیل گدم من تو جے گنوشن تو, جیل گدم من تو جے گنوشن تو, بچوش دی جن بٹھائی وان
wan bichushidi jen bathaiwan tus ako saneto jil gadam maneto je ganushi aneto ju gadami jare sayo takte safar chanus ju gadami jare sayo takte safar chanus chishi kori han mocho tushakte sar chanus chishi kori han mocho tushakte sar chanus maudor thewan ki maudor thewan ki kok mai han to jil gadam mane to je ganu shane to geshu dariye khen umar ga tari dine geshu dariye khen umar ga tari dine khen saat chuchut be shul meher badi dine khen saat chuchut be shul meher badi dine ten gair gatak vayo khan ten gair gatak vayo khan parwa nahi chinto je ganu shanto je ganu shanto suriga nirati to takbathei achiorhan suriga nirati to takbathei achiorhan yun gatar ne lupiji sakbathei achiorhan yun gatar ne lupiji sakbathei achiorhan jaake shor gadurhane sang baitus ganeto jil gadam maneto je ganu shaneto बहुत शुक्रिया। तो ये कोई ताज़ा कलाम है या कोई पुराने कलाम का ही जो ढूंढा ताज़ा कलाम है तो फिर बाबी साहब को नहीं बाबी का कोई मसला नहीं है। अच्छा बाबी क्योंकि मैं शुरू से कोई एजुकेशन में रहा हूँ और टीचिंग में भी ऑफिस में भी ऐसी बात नहीं है। भाभी अच्छी तरह मुझे जानती है। अच्छा। मेरे नफ्सियात से मैं वाकिफ उनके नफ्सियात तभी तो गाड़ी के टायर जब बराबर हो चल रहा है। लेकिन ये मुश्किल काम है। इस तरह जो है वो आप शायरी करते हैं फिर भी वो नहीं ये हो सकता है भाभी से ही गाया हो ये भी मुमकिन है मुश्किल नहीं है ना आसान अगर ऐसा ही है तो आपको फिर कोई एजाज देना पड़ेगा यही है। ये थोड़ा सा मुझे बता दें कि आपने इतना अरसा आप शायरी और गुलकारी करते रहे आपकी कोई कैसेट मंजराम पे नहीं। उस जमाने में एक रिवायत होती थी कि वो रिकॉर्डिंग्स होती थी कैसेट आती थी फलां शायर वॉल्यूम नंबर 1 2 3 और बड़ा ज़बरदस्त आपने गाया। पुराने जो हमारे शोरा पुराने बाकायदा सेंट्रल प्रोडक्शन लाहौर में रिकॉर्डिंग हो गई हमारी। अच्छा वो जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर में जो रिकॉर्डिंग सेंट्रल प्रोडक्शन लाहौर में जो वो रिकॉर्डिंग हो गई उसमें मैं एज ए गुलकार भी था एज ए लैंग्वेज एक्सपर्ट भी था। अच्छा क्योंकि लैंग्वेज एक्सपर्ट इस लिहाज से कि जो खवातीन वहाँ जो गुलकार खवातीन थी उनको शिनाख्त सिखाना पड़ता था बोलना नहीं आता था उनको सिखाया बाकायदा गानों में के साथ बैठ के हमारे शोरा गुलकारों के साथ उन्होंने गाया। हमारे बहुत मशहूर गुलकार आपने ट्रेन किया बाकायदा। ये एक बहुत मुश्किल काम था। वहाँ पे कोई रेडियो पाकिस्तान लाहौर में जो आप गए थे यहाँ से बड़े फनकार शायर गुलकार वगैरह गए थे कोई आपस के अंदर चपकलिश भी हो गई कोई मैं उस दौरान पिंडी में था। मैं पहुंचा नहीं था। अच्छा मैं किसी काम से मेरे मामू बीमार थे। अच्छा। मैं उसकी तीमारदारी में लगा हुआ था। फिर मुझे वहाँ से टिकट भेजा उन्होंने लाहौर से रेडियो पाकिस्तान वालों ने कि आप बाहर पहुँच जाएं लाहौर। फिर मैं लाहौर चला गया। वहाँ पे उस दौरान हमारे अब्दुल खालिक ताज साहब नेमत वली तबस्सुम साहब सलाहुद्दीन हसरत ये मौजूद जानली मौजूद थे। इस दौरान
किसी बात पे शायद इनकी आपस में हुई थी, लेकिन लेकिन वो ओवरऑल जो है वो मेरे ख्याल बहुत में अच्छा, जीबी की तारीख में बहुत पहली अच्छा मर्तबा था कि उस तरह की रिकॉर्डिंग, उस तरह की इज्जत जीबी के फनकारों को बहुत इज्जत दी गई। नसरीन अंजुम भट्टी साहिबा, अल्लाह उसको हयाती दे, अगर ज़िंदा है तो सेहत सलामती दे। वो प्रोड्यूसर बहुत कामयाब प्रोड्यूसर नसरीन अंजुम भट्टी, अच्छा वो असल में थी सराइकी लिखने वाली, अच्छा लेकिन उसने हमारे इस गिलगित से जो फनकार गए थे उनके साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से रिकॉर्डिंग कराया। अब भी वो रिकॉर्डिंग वहाँ मौजूद है। सिर्फ वो रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, यहाँ गिलगित के स्टूडियो में जितने भी शनाई के पुराने शोरा हैं रिकॉर्डिंग्स हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मैंने खुद डबिंग की और उनको सेंट्रल प्रोडक्शन लाहौर में महफूज कराया। यहाँ हो सकता है वो आपके ख्याल में अभी भी वहाँ अभी भी सारे महफूज हैं, यहाँ नहीं है महफूज, वहाँ महफूज है। कोई महफूज नहीं है, महफूज नहीं है, मतलब जो भी उठाया कैसे वो गिलगित में महफूज नहीं है, लाहौर या पिंडी में भी नहीं। अच्छा, सेंट्रल प्रोडक्शन लाहौर की लाइब्रेरी जो है उसमें कैटलॉग मैंने बनाया, जो 60s में 70s में 80s की जो वो सारी रिकॉर्डिंग जो जानली के पुराने गाने थे अब रेडियो पाकिस्तान गिलगित के अंदर नायाब हैं, लेकिन वो सेंट्रल प्रोडक्शन में। सर ये जो लाहौर में जो भी रिकॉर्डिंग हुई वहाँ कोई आपको याद है कि आपने जो गाए वहाँ पे एक आध कोई अगर आपको याद हो तो मेरा एक इश्क़े रगुट्यार से लमीगिन, इसके वो बड़ा मशहूर हुआ, हाँ बड़ा मशहूर हुआ वो, अगर आपको वो मैंने रिकॉर्ड कराया था। प्रणो गुचोद जो कितने मान इश्क़े रगुट्यार से लमीगिन, प्रणो गुचोद जो कितने मान इश्क़े रगुट्यार से लमीगिन, सुकून में ही ये कारजोनी ये गुटार से लमीगिन, अवल गुनाहन में अठियो फतु शामिल हंदा दुहियो, दिया मजबूर हनु जिले यार तस्वीर में ही तुस गिनी तेज इश्क़े रगुट्यार से लमीगिन, कमान तो 60 कोट थी तेज तेरे नजर मवार तुली तेज, बर्बाद में जिंदगी तुस थे गे, बर्बाद में जिंदगी तुस थे गे, थेदार जो आशे लई तेज इश्क़े रगुट्यार से लमीगिन। एक ये गाना मैंने वहाँ रिकॉर्ड कराया था जो मैंने अपनी आवाज़ में ही, और वहाँ की म्यूज़िक जो थी वो 7 डोल थे, जानली की बांसुरी थी और सेंट्रल प्रोडक्शन का जो जदीद तरीन म्यूज़िक था उस ज़माने में वो था। अभी सर आपसे कुछ सवाल हैं। हज़रत बाबज़ोक अब्दुल खालिक ताज के लिए एक सेंटेंस। अब्दुल खालिक ताज और हल्के अरबाब ज़ोक, ज़िया साहब, अब्दुल खालिक ताज साहब और जमशीद खान दुखी साहब, हसन शाद साहब, ये मेरे सामने मेरे बहुत ही बुज़ुर्ग जिनको मैं चाय पानी से तवाज़ु किया करता था। उस ज़माने में घरों में मुशायरे हुआ करते थे। जब हल्के अरबाब ज़ोक की बुनियाद रखी गई तो मेरा शायरी की तरफ जो ज़ोक था, जो शौक़ था, वो तो इससे कबल स्कूल के ज़माने से था। जब मैं स्कूल के ज़माने में पढ़ते रहे, बिल्कुल स्कूल के ज़माने में असेंबली से लेकर अदबी सरगर्मी में उस ज़माने से था। तो बाद में ये घरों में ये चीज़ें हो गई। मैं फर्दन पूछूंगा, सिर्फ मुझे खालिक ताज के हवाले से। खालिक ताज साहब बहुत ही हमारी महफिल की जान है। जब खालिक ताज नहीं होते महफिल सुनी होती है। अमीन ज़िया साहब के लिए, अमीन ज़िया साहब एक पाए के उर्दू शुना दोनों के शायर हैं, अहले ज़बान हैं, शुना पे काम करने वाले गिलगित के वाहिद फ़र्द हैं जिन्होंने जर्मनी में जाके किताबें लिखी। पाकिस्तान के अंदर राजबल कोहिस्तानी ने और दोनों ने मिलकर काम किया। इस तरह खालिक ताज साहब ने भी किताब लाई, उसकी लुगत लाई शुना की। इस तरह अमीन ज़ियाद साहब ने, खुशी मोहम्मद तारिक साहब तो उर्दू के बहुत ही माहिर मायनाज़
शायर जिसके और आपके दो दोस्त बहुत करीबी दोस्त रहे, गुलाम अब्बास नसीम और गुलाम अब्बास नसीम साहब मज़ाहिया शायरी में अपना मकाम रखते हैं। हफीज़ साहब जो है वो इनकलाबी शायरी अपनी जगह पे और अपनी बरादरी और या दोस्ती अपनी जगह पे, पर्सनालिटी एक बहुत अच्छे, बहुत खूब लिखने वाले, बहुत अच्छा लिखने वाले शायर अब्दुल हफीज़ शाकिर, जो आजकल बहुत ही कम महफिलों में आते हैं, कम नज़र आते हैं, बढ़ गई उनकी। हम बुलाते ज़्यादा, वो कम नज़र आते हैं। जहाँ देखो हम नज़र आते हैं तो वो आते नहीं हैं असल में। मसरूफियात इंसान की वक्त। और फिर जमशेद खान दुखी मरहूम, उसको मरहूम कहते हुए भी अब भी मेरा दिल नहीं मानता, अब भी मेरा दिल नहीं मानता कि दुखी साहब हमसे जुदा हो चुके हैं। तो दुखी साहब तो एक ऐसी शख्सियत थी जिसके बारे में क्या कहूँ, हल्के अरबाब ज़ोक़ यतीम हो गई है। अब हल्के अरबाब ज़ोक़ की महफ़िल में जाता हूँ तो मैं सबसे पहले उन सोफ़ों की तरफ देखता हूँ जहाँ पे हमारी महफ़िल होती है कि आइए हुजूर कहने वाला बंदा मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत उन जैसा वो एक मर्द कलंदर थे, वो एक वली थे अल्लाह के, जिससे हमने कभी बहुत मुख्तलिफ इंसान थे। हम इंसानों में गलती से आए थे, वो हमारे दरमियान गलती से आए थे, इसलिए अल्लाह ताला ने जल्दी उठाया, भटक के आ गया था। हमारी महफिल में बैठने की शख्सियत नहीं थी, हम तो उसके सामने को लाइफ का एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको लगा कि बस ये मेरे लिए बहुत मुश्किल चैलेंज है, कहीं आप ऐसा लगा कि आप हार मान गए या पता नहीं मायूस हो गए? सर मुख्तसर ये कि मेरा वाहिद सहारा मेरी माँ थी। जब माँ चली गई तो मैंने ये सोचा कि शायद मेरी दुनिया उजड़ गई, लेकिन मुझे माँ से ज़्यादा प्यार देने वाली माएँ मिल गई, माशाल्लाह, माँ से ज़्यादा प्यार देने वाली। जब भी औरत दिखाई देती है, माँ की सूरत दिखाई देती है, उसके चेहरे की जुर्रियों में मुझे एक औरत दिखाई देती है। तो मेरी खाला, मेरी मुँह बोली माँ हिदायत साहब की वालिदा, हिदायत शाह सभा के चेयरमैन रहे हैं, और उसमें बहुत माँ, मेरी मुँह बोली माँ। इन खाला भी फौत हो गई, लेकिन मैं अपनी मुँह बोली माँ के लिए दुआ करता हूँ हमेशा। ये अभी भी माँ कहने वाली शख्सियत मेरे पास मौजूद है, इसलिए मुझे माँ की वफ़ात के बाद मुझे ज़्यादा दुख उठाना न पड़ा। सर अभी उर्दू में कोई आप अपने पसंद का कोई कलाम तहतुल्लब सुनाना चाहें, तरन्नुम में सुनाना चाहें? एक जो हमारी कौम का एक शेवा रहा है, उस हवाले से एक फिल्बदी शेर मैंने कहा था कि जब उस्मान अली खान साहब दुनिया से रहलत कर गए, अल्लाह गरी की रहमत करे, तो उनकी शान में, उनके एजाज़ में एक प्रोग्राम रखा गया और कॉलेज ऑफ एजुकेशन को उसके नाम पे कर दिया गया। तो वहाँ पे फिल्बदी एक शेर आया था कि जलाते भी वो खुद और बाद में इमदाद देते हैं, जलाते भी खुद और बाद में इमदाद देते हैं, तेरी हिम्मत है ए साहब तुम्हें हम दाद देते हैं, तेरी हिम्मत है ए साहब तुम्हें हम दाद देते हैं। हमारे हुक्मरानों की यही तो एक करामत है, सनत एवार्ड सब कुछ ज़िंदगी के बाद देते हैं, सनत एवार्ड सब कुछ ज़िंदगी के बाद देते हैं। अब जमशेद खान दुखी के हवाले से बहुत सारी बातें की गई, तो मैं कहता हूँ कि लाइफ में कुछ अचीवमेंट, लाइफ में कुछ भी नहीं। जब उसकी डेथ हो गई उस वक्त भी हुकूमती सतह पे कोई बंदा मौजूद नहीं था वहाँ पे। सर अगेन दोबारा से फिर सुना, और सुना में भी आप अपना कोई पुराना पसंदीदा कोई कलाम जो आपको याद हो? एक कलाम ये था चिनार बाग में गाया था 90 में, ही उश्कारनी खोसन सब्र थे तुस। अच्छा, ही उश्कारनी खोसन सब्र थे तुस, डिमे मचारनी खोसन सब्र थे तुस। इसको तरन्नुम में कर सकते हैं, कंपोज या धुन नेसन दिन। तो एक कलाम ही हन के कोशिश है सर। ही उश्कारनी खोसन सब्र थे तुस, डिमई मचारनी खोसन सब्र थे तुस, अठियो कोनिक मवार छथे गनो,
Atrio konik mawar trap tiganu, atrio konik mawar trap tiganu, ten hi parni khosing sabur. Ten hi parni khosing sabur tetus. Bodo shumi dunus yai ma, bodo shumi dunus yai ma, bodo shumi dunus yai ma, dimai shomarni khosang sabur tetus. کیا کہنا ہے سر؟ Hier galehan power pushihan, hier galehan power pushihan, me dime jo garni khosan sabur tetus, hiye ushkarni khosan sabur tetus, achak ek loko hari ne khatama, achak ek loko hari dafan ne tha, achak ek loko hari dafan ne tha, dimai tatarni khosang sabur tetus, dimai tatarni khosang sabur tetus. تو ایک نشیل تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب ہم عروج پہ تھے، عروج پہ تھے، ریکارڈنگز ہوتی تھی، محفلیں ہوتی تھی، شادیاں ہوتی تھی، وہاں پہ ہوتی تھی. تو سر جب وہ دور گیا، زور گیا، اور اب ذہن میں وہ دماغ میں، اب تو ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی ہے میری، 60 سال پورے ہو گئے، تو پھر بھی تھوڑا سا کہیں کوئی اگر ایسا کوئی یاد ہو پرانا. پرانے تو بہت سارے کلام ہیں، لیکن ایک پرانا کلام وہ تھا کہ تم ہی ساتھ جو مٹھر بفت بگنس. اچھا، تم ہی ساتھ جو مٹھر بفت بگنس تاتو گا شیدل ٹر ٹر بفت بگنس. کیا کہ تاتو گا شیدل ٹر ٹر بفت بگنس. کون چارہ اشیل مٹھوئی مرتھ کی، کون چارہ اشیل مٹھوئی مرتھ کی، معصومی جو اکیما ار بفت بگنس. تو شیلے شیلے تم خدای گاموٹوسنس، تو شیلے شیلے ما تم خدای گاموٹونس، سوٹورانن جک سے ما کفر بفت بگنس، سوٹورانن جک سے ما کفر بفت بگنس. وانن بجنن نجک میں ہی درد پر، وانن بجنن نجک میں ہی درد پر، چوکو بے مہانوس عشقی در بفت بگنس، چوکو بے مہانوس عشقی در بفت بگنس. سوٹورانن جک سے ما کفر بفت بگنس. اتھال دو جگہ سسما آگائے واری میں، آگائے اسمان واری، اتھال دو جگہ سسما آگائے واری نے، گے کوہ تورے برابر بفت بگنس، گے کوہ تورے برابر بفت بگنس. اچھا، یہ آپ نے ایک دو گانا گایا تھا، نہیں کلام آپ کا تھا صلاح الدین نے گایا تھا، عزت گنے پیسس تھرین بے عزت گنے پیسس. وہ بھی بڑا، اس کے اندر میسج تھا بیسیکلی نا، نفرت گنے پیسس تھرین. ہنری مثال ادائن انسانی زندگی، یہ بھی ایک ہے، وہی گانا ہے یہ، اسی میں ہے. پہلا بند یہ ہے کہ پھنری مثال ہیں ادائن انسانی زندگی، تھک پہ مشی جئی سمر ادائن انسانی زندگی. اے بے وفا تو فکر نش، اے بے وفا تو فکر نش نے وفائی تن، لوے ہروکن زندگی آخری نشین. ادے بے جک اس طرح کا ہے، لیکن اس میں یہ تھا نا تھوڑا سا عزت گنے پیسس تھرین بے عزت گنے پیسس، ایک قتل گنے پیسس تھرین نفرت گنے پیسس، قتل گنے پیسس تھرین نفرت گنے پیسس، ظالم گنے پیسا قاتل گنے پیسا، قاتل نے پیسہ. یہ اب یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں کم از کم تیاری کر کے آتا. آپ نے مجھے کہا نہیں ماشاءاللہ یہ بیسیکلی نا، یہ جو آپ نے کلام لکھا اور صلاح الدین حسرت نے گایا، وہ بڑا اس کے اندر میسج رہا بیسیکلی نا. جس طرح اس میں کہا گیا کہ عزت گنے پیسس تھرین، عزت گنے پیسس، قتل گنے پیسس تھرین، نفرت گنے پیسس، ظالم نفرت گنے پیسس، تنما جو تو زیادہ ظالم گنے پیسہ، قاتل گنے پیسہ. اصل میں کچھ سامعین یا قارئین جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ یاد ہوتے ہیں، تو نہیں وہ نہیں دوبارہ آپ کو لائیں گے اس لائن. اب آپ ریٹائر ہو گئے،
अब आपको खींच तान के वापस लाएंगे, आपको थोड़ा सा 30 साल पहले लेके जाएंगे अगले फिर किसी मोड़ पे ना किसी और तरीके से इंशाल्लाह। तो अभी कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज यही है आईबेक्स मीडिया नेटवर्क की जानिब से सबसे पहले तो एक बार फिर आपकी सारी टीम का आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त दी, आज बुलाया यहाँ पे, और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले वासियों से ये गुजारिश करूँगा, अब होश में आने के वक्त है, अब होश में आने का वक्त है। अगर अब भी होश में नहीं आए तो ये समझ लें कि हम ख़त्म हो जाएंगे। ये नफ़रतें, ये एक दूसरे से दूरियां, ये मतलब की ज़िंदगी छोड़ दें, और जितना भी हो सकता है आप मोहब्बत फैलाने की कोशिश करें। नफ़रत तो 2 सेकंड की बात है कि नफ़रत फैलाई जा सकती है, मोहब्बत फैलाना बहुत मुश्किल है। आप अपना कोई कलाम अगर आखिर में बिल्कुल इस डायरी से कलाम कोई भी थे इश्क़े सरमजा नमाल दे जिंदगी बुझिन हेशगा गमो जो हाल हाल दे जिंदगी बुझिन बिजटई थरिन तुझो बगैरने दुनिया तरमा मबे बस थरे बस शाल शाल दे जिंदगी बुझिन मबे बस थरे बस शाल शाल दे जिंदगी बुझिन तू पशी महियो त्रुबेन सोरोवान डिमे मजा तू पशी महियो त्रुबेन सोरोवान डिमे मजा थे ख्याल उचूश दे मट जाल दे जिंदगी बुझिन थे ख्याल इस उचूश दे मट जाल दे जिंदगी बुझिन थे इश्क़े सर मजा नमाल दे जिंदगी बुझिन। तो ज़िंदगी यही है इख्तिताम, फिर ज़िंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह सुमर आखिर ये सुमर मुशरिकीन। मैं इल्तिमास करूँगा अपने तमाम सुनने वालों से कि वो मेरे अज़ीज़ और मेरे उस्ताद जमशेद खान दुखी के लिए सूरह फातिहा पढ़ें, उनको याद करें। दुखी जैसी शख्सियत बार बार दुनिया में आया नहीं करती, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है उनके सामने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतज़ार है। प्रोग्राम टाकरा से अपने मेज़बान ईमान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।